آزاد ہندوستان کو پارلیمنٹ کی نئی بلڈنگ ملنی چاہیے یا نہیں؟ اگر پارلیمنٹ کی نئی بلڈنگ بن گئی ہے تو اس کا انوگریشن اور افتتاح کس کے ہاتھوں ہونا چاہیے؟ ہندوستان میں اس وقت اسی پر سب سے بڑی بحث ہو رہی ہے اور اپوزیشن پارٹیوں اور حکمراں جماعت کے درمیان زبردست لڑائی چل رہی ہے۔ آزاد ہندوستان کے 75 سالوں بعد ملک کو نئی پارلیمنٹ کی عمارت ملنے جا رہی ہے۔ اپوزیشن پارٹیوں کا سب سے پہلا اعتراض اسی بات پر تھا کہ ہمارے دیش کو اس وقت پارلیمنٹ کی نئی بلڈنگ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نریندر مودی صاحب کے جو مشیر تھے ان کو مشورہ دیا گیا کہ اگر تاریخ میں آپ کو اپنا نام زندہ رکھنا ہے، تاریخ میں اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں کئی سو سال تک، تو اس کے لیے سب سے بڑا کام یہی ہوگا کہ آپ پارلیمنٹ کی نئی بلڈنگ بنا دیجئے، کیونکہ اب تک جس پارلیمنٹ میں دیش کا دستور بن رہا تھا، قانون بن رہا تھا، جہاں سے پورا نظام چل رہا تھا، وہ انگریزوں کا بنایا ہوا پارلیمنٹ ہے۔ اس لیے آپ نیا پارلیمنٹ بنا دیجئے تو یہاں سے دیش بھکتی لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوگی، آپ کے تئیں لوگوں کی عظمت بڑھے گی اور تاریخ میں آپ کا ہی نام لکھا جائے گا، اور اس کام کو کوئی دوسرا بدل بھی نہیں سکتا ہے۔ ایسا بھی پاسبل نہیں ہے کہ نئی سرکار آئے گی اور آپ کی بنائی ہوئی پارلیمنٹ کو منہدم کر دے گی، پرانی پارلیمنٹ میں کام کاج ہوگا۔ چنانچہ پارلیمنٹ کی نئی بلڈنگ بنانے کا کام سال 2020 میں شروع ہوا اور صرف 2.5 سے 3 سالوں کے دوران پارلیمنٹ کی نئی بلڈنگ بن گئی ہے اور اب 28 مئی کو اس کا انوگریشن ہونا ہے۔ پارلیمنٹ کی نئی بلڈنگ کا انوگریشن وزیر اعظم نریندر مودی کے ہاتھوں ہونا ہے۔ اس موقع پر حکمراں جماعت یعنی بی جے پی نے تمام پولیٹیکل پارٹیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ انوگریشن کے موقع پر تشریف لائے، اس تاریخی لمحہ کا موقع کا حصہ بنے۔ لیکن اپوزیشن پارٹیوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا ہے، احتجاج کیا ہے اور کہا ہے کہ پارلیمنٹ ایک ایسی عمارت ہے جس میں تمام لوگوں کی حصہ داری ہے، یہاں قانون بنتا ہے اور پارلیمنٹ کا جو کسٹوڈین ہے وہ دراصل راشٹرپتی ہوتا ہے، اس لیے پارلیمنٹ کی نئی عمارت کا افتتاح اس وقت کی راشٹرپتی شریمتی مرمو کو کرنا چاہیے، نہ کہ وزیر اعظم کو کرنا چاہیے۔ لہٰذا اگر صدر جمہوریہ کے ہاتھوں پارلیمنٹ کی نئی بلڈنگ کا افتتاح کرایا جائے گا تو ہم شرکت کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ اپوزیشن پارٹیوں کا یہی اصرار ہے۔ دوسری طرف بی جے پی کی طرف سے، حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ نریندر مودی صاحب ہی کریں گے۔ اس موقع پر پریزیڈنٹ کو بلایا گیا ہے۔ اپوزیشن پارٹیوں کا کہنا ہے کہ نہیں، صدر جمہوریہ کو کرنا چاہیے۔ اپوزیشن پارٹیوں نے سب سے پہلا اعتراض اسی بات پر کیا تھا کہ نئی پارلیمنٹ کی ضرورت کیا ہے، حالانکہ کانگریس کی جب سرکار تھی سال 2010 میں، اس وقت ایک رپورٹ آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ نئی پارلیمنٹ کی دیش کو ضرورت ہے، نئی پارلیمنٹ بننی چاہیے، لیکن پھر کانگریس کی سرکار ختم ہو گئی، سال 2014 میں نئی پارلیمنٹ بن نہیں پائی۔ نریندر مودی سرکار نے 2019 میں یعنی دوسری مدت میں سرکار آنے کے بعد اچانک فیصلہ کیا کہ نئی بلڈنگ بننی چاہیے، چنانچہ سینٹرل وسٹارا پروجیکٹ کے تحت پارلیمنٹ کی نئی بلڈنگ کا نقشہ تیار کیا گیا اور اس کا کام بھی شروع ہو گیا۔ فاؤنڈیشن اسٹون رکھا گیا تھا 10 دسمبر 2020 کو اور تعمیر کا کام تعمیری سلسلہ شروع ہو گیا اور اب یہ بلڈنگ تیار ہو گئی ہے۔ جو پرانی بلڈنگ ہے وہ تقریباً تیار ہوئی تھی 5 سالوں میں، سال 2021 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی اور 2027 میں وہ بلڈنگ تیار ہوئی تھی۔ ایڈون لوٹین تھے، انہوں نے اس کا نقشہ تیار کیا تھا، اس طرح ہربرٹ بیکر تھے، انہوں نے بھی پارلیمنٹ کی نئی بلڈنگ کا نقشہ تیار کیا تھا اور 5 سالوں میں وہ بلڈنگ تیار ہوئی تھی۔ انگریزوں نے جب اس بلڈنگ کو تیار کیا تھا تو دراصل جب انگریزوں نے اپنی راجدھانی کو کلکتہ سے دلی منتقل کیا تھا تو انہوں نے ڈیموکریسی انداز میں حکومت کرنے کا فیصلہ کیا، چنانچہ سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی کی عمارت تیار کی گئی اور اس میں تقریباً 700 سے زیادہ سیٹیں تیار کی گئی تاکہ وہاں ساری چیزوں پر بحث ہو کے جب دیش آزاد ہوا تو کنسٹیٹیوٹ اسمبلی کے طور پر اس عمارت کو رکھا گیا۔ اسی عمارت میں ہمارے دیش کا آئین تیار کیا گیا، اس پر بحث ہوئی اور جب دیش کا دستور نافذ ہو گیا 1950 میں، اس کے بعد اس کو پارلیمنٹ ہاؤس میں تبدیل کر دیا گیا اور اس میں لوک سبھا راجیہ سبھا دونوں کے لیے الگ الگ سیٹیں متعین کی گئی۔ ابھی جو پرانی پارلیمنٹ ہے اس میں تقریباً 790 سیٹیں ہیں، جس میں سے 543 سیٹیں لوک سبھا کے لیے ہے اور 250 سیٹیں راجیہ سبھا کے لیے ہے۔ یہ سیٹیں کم سمجھی جا رہی تھی، چنانچہ نریندر مودی سرکار نے نئی پارلیمنٹ بنانے کا فیصلہ کیا۔ نئی بلڈنگ میں تقریباً 1000 سے زیادہ سیٹنگ ارینجمنٹ ہے۔ لوک
लोकसभा के लिए 888 सीटें हैं और राज्यसभा के लिए 384 सीटें हैं। डिलिमिटेशन अगर होता है, यानी मुल्क में लोकसभा की तादाद अगर बढ़ाई जाती है, इस वक्त तकरीबन 553 या 54 लोकसभा की कुल सीटें हैं, तो अब इरादा है कि डिलिमिटेशन करके 800 के करीब लोकसभा की सीटें पूरे मुल्क में हो, तो उसमें ये पार्लियामेंट काम आएगी। अब अहम सवाल यह है कि नई इमारत का इफ्तिताह किसको करना चाहिए। इस वक्त जो सियासी पार्टियां हैं दो हिस्सों में तकसीम, एक तरफ बीजेपी और उसकी जो अलायंस की पार्टियां हैं वो इनॉग्रेशन में शरीक हो रही है। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी के हाथों इफ्तिताह होना सही है। दूसरी तरफ देश की 19 पार्टियों ने मुश्तरका तौर पर एक लेटर जारी किया और कहा है कि हम इस इनॉग्रेशन का बायकॉट करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी के हाथों इनॉग्रेशन होना और सदर जमहूरिया के हाथों न होना सदर जमहूरिया की तौहीन है। और जो सदर जमहूरिया है वो देश की अव्वल शहरी होती है, वो सबसे बड़े ओहदा पर उनको समझा जाता है, लिहाजा इस वजह से ये लोग बायकॉट कर रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ पार्टियां हैं जो इनफरादी तौर पर बायकॉट में शरीक है, जैसे कांग्रेस ने 19 पार्टियों को शरीक किया बायकॉट में, जिसमें आरजेडी, एसपी, समाजवादी पार्टियां शामिल है, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शरीक नहीं किया। तो एमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम भी बायकॉट करते हैं, इनॉग्रेशन में शरीक नहीं होंगे, और उन्होंने शिरकत न करने की वजह अलग बताई। अपोजिशन पार्टियों ने कहा कि सदर जमहूरिया के हाथों नहीं कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसका इनॉग्रेशन होना चाहिए स्पीकर के हाथों, क्योंकि जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो पार्लियामेंट का कस्टोडियन होता है, इस वजह से हमारी भी शिरकत नहीं होगी, नरेंद्र मोदी को इख्तियार नहीं है। तो कुल मिलाकर के तमाम लोगों का एतराज़ इसी बात पर है कि वज़ीर आज़म को राइट्स नहीं है। अब अगर मेरी राय पूछे कि क्या होना चाहिए, किसको इख्तियार है, किसको इख्तियार नहीं है, तो मेरा मानना यह है कि जो पार्लियामेंट है इसमें तमाम पार्टियों की शिरकत होती है, और जो वज़ीर आज़म होता है वो किसी न किसी एक पार्टी का लीडर होता है, भले ही वो वज़ीर आज़म के तौर पर तमाम पार्टियों की, तमाम आवाम की नुमाइंदगी करता है, लेकिन उसकी पहचान एक पार्टी के तौर पर होती है, एक पार्टी के जिम्मेदार के तौर पर होती है। जबकि सदर जमहूरिया का जो रोल है वो किसी एक पार्टी का नहीं होता। सदर जमहूरिया के जो इख्तियारात हमारे देश में हैं वो कुछ ऐसे अंदाज के हैं जो बराह रास्त आवाम से मुताल्लिक़ नहीं होते हैं। तो सदर जमहूरिया पर तमाम लोगों का भरोसा होता है, तमाम लोगों का एतमाद होता है, और सदर जमहूरिया को कभी भी किसी पार्टी के तौर पर नहीं देखा जाता है। भले ही जो राष्ट्रपति है वो बनाया ऐसे लोगों को जाता है जिनका किसी न किसी पार्टी से अच्छा रिश्ता होता है, लेकिन राष्ट्रपति बन जाने के बाद उन पर इस तरह के इल्ज़ाम नहीं लगता। सदारती ज़िम्मेदारी संभालने के बाद, यानी जो लोग सदर जमहूरिया बनते हैं वो जब उनकी मुद्दत पूरी हो जाती है तो दोबारा वो सियासत में आते भी नहीं हैं। तो सदर जमहूरिया का सियासत से हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म हो जाता है। इसलिए ऐसी अजीमुशान इमारत का इफ्तिताह अगर सदर जमहूरिया के हाथों होता है तो वो ज़्यादा अच्छा है, वो देश के लिए अच्छा है, उसमें तमाम लोगों की शिरकत होती है, कोई बायकॉट नहीं होता है। इसलिए मेरा मानना यही है कि पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह देश की राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू को ही करना चाहिए, वही आवाम और तमाम सियासी पार्टियों के हक़ में है, और लोगों का मिजाज भी यही है। मशहूर टीवी चैनल के एंकर अंजना ओम कश्यप ने पिछले दिनों अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोल किया जिसमें उन्होंने लिखा कि पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह होना है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों हो रहा है। अपोजिशन की तरफ से इसका बायकॉट किया जा रहा है कि राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? क्या अपोजिशन का बायकॉट करने का फैसला सही है? इस पोल में तकरीबन 60 से 70% लोगों ने इस हक़ में वोट किया कि अपोजिशन के बायकॉट करने का जो फैसला और ऐलान है बिल्कुल सही है, यानी सदर जमहूरिया को ही इसका इनॉग्रेशन करना चाहिए, वज़ीर आज़म को नहीं। तो एक तरह से गोदी मीडिया के इस एंकर के पोल में भी इतनी बड़ी तादाद यही आकर के लिख रही है कि राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए, अपोजिशन के बायकॉट करने का फैसला सही है। तो इसका मतलब आवाम यही चाहती है। इसलिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए, तमाम पार्टियों को शरीक करना चाहिए, और तमाम पार्टियों की शिरकत उसी वक्त मुतवक्के है जब श्रीमती मुर्मू के हाथों इस इमारत का इफ्तिताह होगा। वैसे इस इमारत के इफ्तिताह होने में चंद घंटे का वक्त बाकी रह गया है। देखिए तारीख लम्हा क्या होता है। देश को पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग मिलने वाली है। जो पुरानी बिल्डिंग है वो सर्कल में है, और ये जो नई बिल्डिंग है ये ट्रायंगुलर है, जो तिकोनिया इमारत आप इसको कह सकते हैं। पहले इमारत की खुसूसियत अलग थी, इस इमारत की खुसूसियत अलग है। ये तकरीबन 65,000 स्क्वायर मीटर में है, उसकी जगह कुछ कम थी। तो दोनों इमारत की अलग अलग जगह है, लेकिन टीवी चैनल के एंकर्स एक दलील दे रहे हैं जो मोदी सरकार की खूबियों को बता रहे हैं। मुझे लगता है ये जो ज्ञान है महाबकवास है। टीवी
चैनलों के एंकरों के ज़रिए कहा जा रहा है कि ज़रा अंदाज़ा लगाइए, सोचिए कि हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन अभी तक हमारे मुल्क की जो पार्लियामेंट चल रही थी वो अंग्रेज़ों की बनाई हुई इमारत में, यानी कानूनी तौर पर पार्लियामेंट की सतह पर अभी तक हमारा मुल्क आज़ाद नहीं हो सका था। हम गुलामी वाली जहनीत में जी रहे थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने इतना बड़ा काम किया कि देश को नई पार्लियामेंट उन्होंने दी है, जो काम इससे पहले कोई सरकार नहीं कर सकी। ये जो लॉजिक है सरासर अहमकाना वाली बात है, क्योंकि हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर रखा था, यहाँ के असासा को उन्होंने लूटा था। हमारी कोशिश से, जिद्दोजहद से वो देश छोड़ कर चले गए, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। लिहाजा हिंदुस्तान का जो कुछ है वो हमारी अपनी प्रॉपर्टी है। अगर अंग्रेज़ों ने बनाया है तो ऐसा नहीं कि उसको हम बर्बाद कर देंगे, उसको ख़राब कर देंगे, असर नो बनाएंगे। नुकसान किसका होगा? हमारा नुकसान होगा। अंग्रेज़ों ने अगर नई पार्लियामेंट बनाई थी हिंदुस्तान में तो उसमें हिंदुस्तान का पैसा लगा था, यहाँ के मज़दूरों ने उसको बनाया था, यहाँ के लोगों ने बनाया था। हमारी दौलत के ज़रिए अंग्रेज़ों ने अपना निज़ाम चलाने के लिए अपनी पार्लियामेंट बनाई थी, लेकिन हमारे खून पसीने की कमाई से वो इमारत बनी थी। लिहाजा वो हमारी इमारत है, वो अंग्रेज़ों की इमारत नहीं। इसलिए ये कहना कि अंग्रेज़ों की बनाई हुई इमारत थी, अब तो गुलामाना ज़हनीत थी और अब मुल्क में आज़ादाना सोच आई है, ये महज बकवास है। और अगर इसी सोच को मोतबर मान लिया जाए तो फिर हमें अपने देश से ही हाथ धो लेना चाहिए कि हिंदुस्तान पर तकरीबन 200 सालों तक अंग्रेज़ों ने राज किया, यहाँ हुकूमत की। अब वो देश छोड़कर चले गए तो इस मुल्क में हमें रहना ही नहीं चाहिए, कहीं और रहना चाहिए, क्योंकि ये वो देश है जहाँ अंग्रेज़ों ने हुकूमत किया। तुम कैसे रहें? जिस तरह से पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि यहाँ अंग्रेज़ों ने राज किया, उन्होंने अपना कानून बनाया, वो बहस कर रहे थे, तो इस पार्लियामेंट में हमें कैसे बैठना चाहिए? नई पार्लियामेंट बनाना चाहिए। तो ये लॉजिक सिरे से गलत है। हमारे पैसों से बनाया गया था, वो हमारा है। ताजमहल भी हमारा है, लाल किला भी हमारा है। जिन लोगों ने राज किया उस वक्त बनाया, लेकिन वो हमारा है। यहाँ के अवाम क्या है इस पर किसी और का दावा नहीं किया जा सकता। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपना ख्याल ज़रूर लिखिए कि किसके हाथों पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन होना चाहिए, और ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ज़रूर ले लीजिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।